Students, in the last class, we are discussing about a different type of adsorptions or the factors affecting the adsorptions. So today we will discuss about a type of adsorption, that is physiosorption and chemiosorption. Okay. Now, what is the difference between physiosorption and chemiosorption? As the name suggests, the physiosorption is having physical effects, and in case of chemiosorption, there has to be chemical bonding. So physiosorption occur due to van der Waals forces, means which are very weak forces, and chemiosorption occur due to chemical bond formation. This is very important thing, that physiosorption have only van der Waals forces of attraction and chemiosorption have chemical bond formation. Now, physiosorption, for example, the dust on a table is physiosorption, which has having very less forces of attraction between dust and table surface, because we can wipe it out. Okay, and if we say some other thing, the if I'm saying that the dirt on a shirt, we have to use some external agency, like we have to add some soap or other things so that the dirt can be removed from that particular shirt. Okay, now physiosorption is not specific in nature, that all the gases are adsorbed on the surface to an extent. Chemiosorption is highly specific. स्पेसिफिक मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कितना एडजॉर्ब होता है. फिजियोसॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और केमियोसॉर्प्शन इरिवर्सिबल. एक बार ही हो गया तो उसे आप हटा नहीं सकते until and unless you have to use some external agency. But in case of physiosorption you can remove it again and you can apply it again. रिवर्सिबल है, एक बार उस डायरेक्शन में जाता है और एडजॉर्प्शन होता है, एक बार एडजॉर्प्शन नहीं होता है. अब physiosorption do not need any activation energy, as there are very weak forces of attraction that are van der Waals forces, तो activation energy नहीं चाहिए. Chemiosorption requires activation energy. Next is, now we have understood in the last lecture that easily liquefiable gas can be adsorbed more easily. So in case of physiosorption, the gas which is easily liquefiable, and easily liquefiable मतलब easily change into liquid, or which gases can change into liquid which has higher critical temperature. Okay, so that can easily adsorb. Gases which react with adsorbents, so chemiosorption. इसमें भी रिएक्शन होना चाहिए, रिएक्शन होने के बाद केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए. इंथैल्पी इसकी बहुत कम होती है, और इंथैल्पी केमियोसॉर्प्शन की क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. ओके, नाउ टेम्परेचर का इफेक्ट, ये जो फिजियोसॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है इंक्रीज होने पे टेम्परेचर पे, और ये इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. फेवर्स लो टेम्परेचर, दैट फेवर्स हाई टेम्परेचर. अब इसमें भाई मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है, मतलब एक लेयर बन गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर. बट इन केस ऑफ केमियोसॉर्प्शन सिर्फ एक सिंगल लेयर बनती है. ओके, इट रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस. Now, what is adsorption isotherm? This is also very important topic, because that is asked in question paper again and again, that adsorption isotherm क्या होता है. Adsorption isotherm, as the name suggests, iso means same, therm means temperature. The variation of amount of gas adsorbed on an adsorbent at a constant temperature with the change of pressure is known as adsorption isotherm. मतलब आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रेशर को चेंज करना है और ये देखना है कि कितनी गैस किसी एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हो रही है, तब आप बता सकते हो कि वो क्या है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है. सो द अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. The variation of amount of gas adsorbed on adsorbent at a constant temperature with change in pressure is known as adsorption isotherm. So x by m, x is the mass of adsorbate, m is the mass of adsorbent, p is the pressure. अगर x by m की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर चेंज करते हैं तो वैल्यू जो है वो ऐसे आते हैं भाई. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वैल्यूज कांस्टेंट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे, और ये कांस्टेंट वैल्यू रहती हैं. जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं
तो हमारे पास जो मास ऑफ एडजॉर्बेट ऑन द एडजॉर्बेंट है वो कम होता जाता है। इस तरफ हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इस तरफ ये कम हो रहा है। ओके, तो द वेरिएशन ऑफ amount of gas adsorbed on adsorbent at a constant temperature with respect to pressure or with change in pressure is known as adsorption isotherm. Next is what is Freundlich adsorption isotherm. फ्रेंडलिच ने एक एक्सप्रेशन दी थी भाई। फ्रेंडलिच ने सबसे पहले बताया कि हम कैसे आइसोथर्म को स्टडी करेंगे, तो उसने एक एक्सप्रेशन दी थी जिसमें उसने एक रिलेशन शो करा कितना एडजॉर्प्शन होता है विद चेंज इन प्रेशर। तो जो हमारे पास x/m है, x/m हमारे पास क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, x इज मास ऑफ एडजॉर्बेट, m इज मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मतलब कितना एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्ब हुआ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kp की पावर 1/n, kp की पावर 1/n. If I am taking log, then log x/m is equal to log k plus 1/n log p. So these is the equation given by Freundlich adsorption isotherm. और इसको अगर हम स्टडी करते हैं then we will find it out that x is amount of adsorbate, m is mass of adsorbent, p आपका प्रेशर है। तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा आता है भाई, if you plot a graph of log of x/m, log of x/m not x/m, अगर हम x/m ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। लाइक हेयर यू कैन सी, अगर ये हमने स्टडी कराया आपके पास सॉलिड स्टेट एडजॉर्बेंट के लिए, अगर हमारे पास इसमें सॉल्यूशन है, हमने लिक्विड एडजॉर्बेंट लिया है, लिक्विड एडजॉर्बेट लिया है और एडजॉर्बेंट हमारे पास सॉलिड है। जैसे मैं बात करता हूँ कि अगर हमारे पास चारकोल है भाई, चारकोल को हमने किसी डाई में ऐड कर दिया जिसका कलर है, तो चारकोल क्या करेगा, उस डाई को सारे को अपने ऊपर डिपॉजिट करा लेगा। ओके, इफ देयर आर सॉल्यूशन इन्वॉल्व देन x/m इज इक्वल टू k, p की जगह भी सिर्फ कंसंट्रेशन आ जाएगा, c फॉर कंसंट्रेशन। अगेन आप लोग लेंगे, लोग x/m लोग k प्लस 1/n लोग c, क्योंकि आपको पता है लोग m पावर n क्या होता है भाई, n लोग m होता है। ओके, सो x इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, जो हमारे पास ये x था भाई, ये क्या था, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट था, m हमारे पास मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, p प्रेशर है, c कंसंट्रेशन है, k और n कांस्टेंट है भाई, और n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। अगर हम इक्वेशन 2 में log x/m वर्सेस log p ग्राफ प्लॉट करते हैं, इक्वेशन 2 क्या है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है भाई, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका m जो है वो स्लोप होता है और c आपके पास इंटरसेप्ट रहेगा। तो स्लोप क्या है 1/n और इंटरसेप्ट क्या है log k। तो ये इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से आप फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को स्टडी कर सकते हो। ओके, so next is what are applications of adsorption. This is also a very important topic because most of the people are just want to know that why we are studying these things. So important thing is production of high vacuum. वैक्यूम जनरेट करने के लिए भाई, अगर हमने किसी वेजल में वैक्यूम जनरेट करना और उसके अंदर कुछ बचा हुआ है, चाहे एयर है, चाहे आपके पास मॉइस्चर है, चाहे कुछ भी है, उसको हम कोई ऐसा पार्टिकल डालेंगे जैसे चारकोल हो गया, जैसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जैसे सिलिका जेल हो गया, ताकि वो अपने ऊपर मॉइस्चर को या फिर एयर को क्या करा ले, एडजॉर्ब करा ले। अगर एडजॉर्प्शन प्रोसेस नहीं हो तो हम हाई वैक्यूम क्रिएट करने में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ओके, कंट्रोल ह्यूमिडिटी। अब सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल क्या करते हैं भाई, सिलिका जेल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था दैट वी यूज्ड व्हेन वी बॉट न्यू शूज, देन यू फाइंड आउट द सिलिका जेल पॉकेट्स दैट आर यूज्ड फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। वो मॉइस्चर को और ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए सिलिका जेल का हम यूज़ करते हैं। अब गैस मास्क, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19। मास्क जो बनते हैं ना भाई, अगर हम उस मास्क में एक्टिवेटेड चारकोल और या फिर कोई ऐसा एडजॉर्बेंट डाल दें
जो जैसे कोल वर्कर्स जो हैं कोल माइंस में, कोयले की खदानों में जो कोयले के काम करने वाले हैं, उसमें बहुत सारे गैसेस, बहुत सारा जो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आर देयर इन द एटमोसफियर। सो वो सीधा अगर आपकी नाक से आपके लंग्स में जाते हैं तो दे आर वेरी हार्मफुल टू अस। So for that we are making gas mask, and that mask consists of charcoal, and that is activated charcoal. Activated charcoal कैसे बनता है भाई, ये भी मैंने बताया था। चाहे तो आप क्या कर दें, दो तरीके थे, आप लास्ट लेक्चर में देखना। आप या तो सरफेस एरिया बता दें, सेकंड आप लोग बताना। गैस मास्क कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड आर यूज्ड टू ब्रीथ इन कोल माइंस। तो एक्टिवेटेड चारकोल के जो मास्क बनते हैं ना भाई, वो सारे गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है, तो वो आपके पास गैसेस को नहीं बेचने देता। अब रिमूविंग कलर्ड सब्सटेंस फ्रॉम सॉल्यूशन, ये यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। चैप्टर 11+1 क्लास क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। अगर आपके पास दो कंपोनेंट हैं तो हम एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज लेके मोबाइल फेज को रन कराते हैं, जिससे जो एफिनिटीज हैं मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स की मोबाइल के फेज के साथ अलग अलग होती हैं। इस वजह से जो कंपोनेंट कम अमाउंट में एफिनिटी होती है, जिसकी कम एफिनिटी होती है, कम बाइंड करता है, वो नीचे रह जाता है, जो ज़्यादा बाइंड करता है वो ऊपर चला जाता है। तो सेपरेशन टेक्निक है अभी क्रोमेटोग्राफी, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं किसका, एडजॉर्प्शन का। वो कैसे, आप एक सिंपल एग्जांपल ले लो। अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, उसके अंदर आपने एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। क्यों, जितनी भी डाई थी, जितना भी आपके पास इंडिकेटर था, वो सारा इकट्ठा होकर चारकोल पे स्टिक हो जाएगा, वो एडजॉर्ब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इसको हम अलग से पढ़ेंगे। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस कैटालिसिस को भी हम अलग से पढ़ेंगे। गैसियस रिएक्टेंट्स को हम सॉलिड कैटालिस्ट पे एडजॉर्ब कराते हैं। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। अब अगर हमें कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस करानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गैसियस रिएक्टेंट को, जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस को निकल के ऊपर क्या करा दिया भाई, एडजॉर्ब करा दिया। गैसियस रिएक्टेंट को एडजॉर्ब कराते हैं सॉलिड कैटालिस्ट पर। इसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है सरफेस पे इंक्रीज हो जाती है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है भी। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सरफेस पे रहेगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यूज फाइनली डिवाइडेड निकल, एग्जाम्पल में है भाई इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल। हम क्या करते हैं, निकल के ऊपर हाइड्रोजन गैस को डिपॉजिट कराते हैं, एडजॉर्प्शन कराते हैं, उसके बाद उसकी रिएक्शन करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स के साथ, ताकि हम उसे वेजिटेबल घी में या फिर वेजिटेबल फैट में, जिसको हम डालडा घी बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकें। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, मैनी डाई बिकेम्स यूजफुल ड्यू टू एडजॉर्प्शन। दीज डाई हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज इंडिकेटर स्पेशली इन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है भाई जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में दो सब्सटेंस को मिक्स करने से कुछ सॉलिड निकलता हो। जैसे अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को और KBr को मिक्स करता हूँ तो सिल्वर ब्रोमाइड मिलेगा। और जैसे मैं और रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराता हूँ तो उनमें हो सकता है कि आपके पास सॉलिड प्रेसिपिटेट आउट हो और या फिर ना हो। तो दिन डाइज में आपके पास सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, उसमें हम एज एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे ईओसिन इज द नेम ऑफ इंडिकेटर विच वी यूज। ओके, अब इनर्ट गैसेस के लिए, इनर्ट गैसेस को भाई अलग अलग एडजॉर्ब किया जाता है चारकोल पे, कोकोनट चारकोल पे। इनर्ट गैसेस किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं, तो उनको सेपरेशन का कोई ऐसा टेक्निक होती नहीं है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट इनर्ट गैसेस को एडजॉर्ब कराते हैं डिफरेंट एक्सटेंट तक कोकोनट चारकोल पे। क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस जो अभी हमने पढ़ा, दिस इज बेसिकली द सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ सम सब्सटेंस बाय अ सॉल्यूशन हेल्प्स टू सेपरेट कंपाउंड। भाई जितनी भी डाइज होती हैं इंक में, उन सब को हम सेपरेट कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस से। क्यों,
क्योंकि कई डाइज जो हैं वो ज़्यादा एडजॉर्ब होते हैं, कई कम एडजॉर्ब होते हैं। जो कम एडजॉर्ब हो जाती हैं वो मोबाइल फेज के साथ चले जाते हैं। मोबाइल फेज क्या होता है भाई? सोलवेंट जो रन करता है किसी पर्टिकुलर पेपर के ऊपर, जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है। तो क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस जो है वो सेपरेशन टेक्निक है। ओके, क्यूरिंग डिजीज, सम ड्रग्स कैन एडजॉर्ब द जर्म्स ऑन देम एंड किल्स देम, सेविंग अस फ्रॉम डिजीज। अब डिजीज में भी एडजॉर्प्शन का यूज़ है भाई। कैसे? क्योंकि कई ड्रग्स जो हैं जो हमारी स्किन पे हार्मफुल बैक्टीरिया से, हार्मफुल जर्म्स हैं, उनको क्या कर लेते हैं? एडजॉर्ब करा देते हैं। अब फ्लोटेशन प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम डिटेल में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब सल्फाइड ओर को सेक किया जाता है पाइन ऑयल और वाटर के साथ। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल एंड वाटर। द ओर पार्टिकल्स, ओर क्या होती है अभी? और वो चीज़ होती है जो अर्थ क्रस्ट पे मिलती है, जिससे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। तो द ओर पार्टिकल्स आर एडजॉर्ब ऑन द फ्रोथ दैट फ्लोट्स एंड गैंग पार्टिकल्स सेटल डाउन। फ्लोटेशन, फ्रोथ का मतलब होता है झाग बनना। बेसिकली भाई हम क्या करते हैं? हम इसको डिटर्जेंट टाइप से वॉश करते हैं जो सल्फाइड ओर है उसे। अब सल्फाइड ओर में जो सल्फाइड पार्टिकल हैं वो ओर में रह जाते हैं, फ्रोथ में रह जाते हैं, और जो मिट्टी है या फिर और कुछ है गैंग पार्टिकल्स, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसे गैंग पार्टिकल्स बोलते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स में यूज करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर। नाउ कैटालिसिस। Catalyst is a substance. Basically, what is catalyst? Catalyst is a substance which can alter the rate of a chemical reaction. चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा कि हर एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बैरियर पास करना होता है। उस एनर्जी बैरियर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बोलते हैं। एंड दैट एक्टिवेशन एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। जब तक रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी अमाउंट नहीं मिलेगा तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। So for changing the reactant to product, we have to either change the path, easy change करने के लिए, rate of reaction को बढ़ाने के लिए, तो हम कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं कई केमिकल रिएक्शंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, इसका मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया और घटा भी सकता है। सब्सटेंस विच अल्टर का मतलब होता है भाई चेंज कर सकते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, and themselves remains chemically and quantitatively unchanged। मतलब खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटालिस्ट। और जो ये प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कैटालिसिस। द प्रोसेस ऑफ डन बाय कैटालिस्ट इज नोन एज कैटालिसिस। प्रमोटर्स क्या होते हैं? सब्सटेंस विच एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। जो सब्सटेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को बढ़ाते हैं उसे हम प्रमोटर बोलते हैं। पॉइजन क्या होते हैं? सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो सब्सटेंस डिक्रीज करते हैं एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन बोलते हैं। अब हैबर प्रोसेस है भाई फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जिसमें हम नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं एज मोलिब्डेनम। इसमें आपका एक्ट करता है प्रमोटर जो एनहेंस करता है कैटलिस्ट की एक्टिविटी को, और कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? आयरन। इससे अमोनिया प्रोडक्शन होता है भाई, और अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है मैक्सिमम अमाउंट में। दैट NH2CO NH2 इज यूज्ड बाय एवरी फार्मर इन इंडिया, और नॉट एवरी फार्मर। द यूरिया इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन soil so that plant growth is possible. Okay. So in Haber process we use molybdenum as promoter and iron as catalyst. Promoter molybdenum ने catalyst की activity को बढ़ा दिया और catalyst ने reaction के rate को बढ़ा दिया. So this process is known as catalysis. Further, the types of catalysis we will discuss in our next lecture.